Hey everyone, my name is Ankit and I am your computer tutor. So in this video, what I'll be doing is I'll be doing nothing more than solving a question that has been asked in our students.computertutor.n community, where a lot of you ask your questions here and I try and solve them on daily basis. Okay, so moving down to pick up the next question. Okay, so we have a question unanswered from Devodit Agwania, and let's just look at his question that he has to ask. Great. So what is the output of the following code? S equals 0, D 1 equals, okay, sounds good. So what I'll do, I'll just copy this snippet, code snippet into Python's file. Okay, I'll just paste it here. I'll try do some indentation already. That's should be done into the program. I'll go statement by statement. S equals 0. Then there's this dictionary. Then there's this for loop. Then there's this if statement. Within that, there's some computation happening, and then we got to print the result. So it has to be out of the loop. Perfect. So this is the program that the other student has asked us. The name of the student is Devodit Agwania. It's been asked 5 days ago, and today I'm presenting him the answer inside the community. Okay, that's great. So let's just run the program and see what's the output, and then we'll go ahead into our pen paper catch up that we do, and then we'll try and understand the program line by line, what's happening, what values are associated to each variable, and how do we get the answer. So let's just look at the answer once, and then we'll go to the pen and paper thing that we have. Perfect. So when I run the module inside Python 3.7, okay, so when I see the output, it gives me 43. So the value of s, the value that we are trying to print here, with this statement print s, we get the value 43. And now let's just go inside our pen paper. I'll iterate through all the loops, all the iterations, and then I'll show you how do we have 43 as the output of this program. वेलकम टू द मेरा शीट जहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो हमें पता है कि यार हमें सम निकालना है. बेसिकली हम कुछ समीशन कर रहे हैं ये वाली लाइन पे, और हमें क्या करना है कि हमें एस की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज प्रिंट एस हो रहा है आखिरी में. तो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया वीडियो में कि एस की वैल्यू 43 आ रही है. तो अब हम एक बार चेक करते हैं कैसे आ रही है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स हाईलाइट कर रखे हैं, एस एंड ए. ठीक है, तो एस एंड ए मैंने किस हिसाब से हाईलाइट करे हैं, यहाँ पे हमें ये जानना है. ठीक है, तो एस एंड ए हमने इस हिसाब से हाईलाइट करें कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आप देखोगे एस और ए की वैल्यू ही चेंज हो रही है. करेक्ट. तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना रहे हैं ये वाली, जिसमें हम हर आइट्रेशन के हिसाब से, आइट्रेशन कहाँ पे हो रही है, आइट्रेशन इस लूप की वजह से हो रही है. ठीक है, इस लूप के अंदर हम वैल्यूज फिल करेंगे एस और ए की. ठीक है, तो चलो अब फिल करते हैं. हमें पता है D1 एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स है. ठीक है, यहाँ पे कीज क्या है, कीज K1 हो गया कैट, K2 हो गया डॉग, K3 हो गया एलिफेंट, K4 हो गया बियर. ठीक है, ये सारी कीज और करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज है. तो जब मैं लिख रहा हूँ फॉर ए इन D1, मतलब ए इन डिक्शनरी 1, तो ये जब जब आइट्रेट होगा वो क्या करेगा, पहले आइट्रेशन में वो कैट के पास जाएगा, दूसरे आइट्रेशन में वो डॉग के पास जाएगा, तीसरे आइट्रेशन में वो एलिफेंट के पास जाएगा, चौथे आइट्रेशन में वो बियर के पास जाएगा. ठीक है, फॉर ए इन D1 का मतलब है डिक्शनरी में सारे आइट्रेशन लूप कवर करेगा. तो हमें ये तो पता है इससे कि इस लूप की वजह से 4 आइट्रेशन होंगे टोटल. ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो गई. दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अब हम लूप के अंदर चलते हैं और लूप के अंदर के आइट्रेशंस को फिल करते हैं और अपनी एस और ए की वैल्यूज भरते हैं. फॉर ए इन D1, तो हमें पता है ए क्या होगा, ए अभी K1 होगा, दैट इज K1 ऑफ डिक्शनरी 1 विच इज कैट. तो अब मैं कह रहा हूँ इफ लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, जब मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ ए, तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कैट की वैल्यू, स्ट्रिंग कैट की मतलब लेंथ निकाल रहा है. तो लेंथ ऑफ ए अगर हम कैट को डालेंगे तो वो 3 आएगा.
ठीक है। तो 3 इज नॉट ग्रेटर दैन 3, 3 तो बराबर है 3 के, तो ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इटरेशन में क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए आया 3 और वैल्यू ऑफ एस क्या रहा, 0 रहा। किसकी वजह से, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने इनिशियलाइज कर रखा है एस इक्वल 0, तो पहली इटरेशन के बाद एस तो भैया 0 ही है। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड आइट्रेशन में जाएंगे। सेकेंड आइट्रेशन में ए होगा डॉग, अगेन लेंथ ऑफ ए क्या होगा, 3 होगा, और सम क्या होगा, सम अभी 0 ही रहेगा। ठीक है जी। अभी क्या होगा, थर्ड आइट्रेशन में एलिफेंट K3 पिक होगा और उसका चेक करा जाएगा, क्या लेंथ ऑफ एलिफेंट ग्रेटर देन 3 है, हाँ जी है। तो क्या है एलिफेंट की लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ELEPHANT इक्वल्स 8। तो लेंथ ऑफ ए 8 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को ए की जगह ना लेंथ ऑफ ए कर देते हैं, बिकॉज ये हम वैल्यूज यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल्स एस प्लस D1 ऑफ ए। तो ये वाला बेसिकली जो मतलब एक्सप्रेशन है, ये क्या करेगा, ये हमें वैल्यू देगा ऑफ द की। ठीक है, अगर K3 वैल्यूएट हो रहा है तो इसकी वैल्यू होगी 23। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा 23 थर्ड आइट्रेशन में। ऐसे फोर्थ आइट्रेशन में जाते हैं, बियर क्या है, बियर ज़्यादा है 3 से, लेंथ ऑफ 3 से, तो 4 है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इवेल्युएट होगी। ये वाली स्टेटमेंट इवेल्युएट होगी तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इक्वल्स एस प्लस D1 है। तो फोर्थ आइट्रेशन में ये वाला जो स्टेटमेंट है एस इक्वल एस प्लस DA क्या देगा, एस की वैल्यू अभी क्या है, 0 नहीं है, एस की वैल्यू है 23, तो ये देगा 23 प्लस D1 ऑफ ए। D1 ऑफ ए क्या है, दैट इज वैल्यू ऑफ बियर, K4 की 4 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो ये देगा हमें 43। तो इसलिए चौथी आइट्रेशन के बाद वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 43, और यही हमारी एस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू एस की 43 इसी वजह से।